Advait, can you hear me? आर्यन, आर्यन, हम लोगों ने क्या पढ़ा था एलसीआर सर्किट का? तीन चीज पढ़ा था, तीन केस पढ़ा था. क्या केस था? पहला केस जहां पर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी. हाँ सर. सेकेंड केस एक्सी, एक्सेल इज स्मॉलर देन या एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल. एंड थर्ड केस इज एक्सएल इक्वल. इक्वल टू एक्सी. तो यहां पर फॉर्मूला क्या था अपना z का? z इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. प्लस आर स्क्वायर. यहाँ पर z इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या था आपको पता है? एक्सएल इक्वल टू एक्सी सेम ही है. तो ये जीरो हो गया, 0 हो जाएगा तो जो आर स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू आर. तो z इक्वल टू आर. अभी यही केस जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे विस्तार में, मोर. सो बेसिकली ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. ऑल दिस वी हैव स्टडीड. सिद्धि, यू हैव नॉट स्टडीड. वी हैव, आई विल गिव यू लेटर, बट फर्स्ट दिस शुड अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, and this is called series resonance, by the way. Okay, series resonance. क्यों series resonance? क्योंकि your capacitor, resistor and the inductor are all in the series connection, and you are giving your XL equal to XC. When you say XL equal to XC, it means what? It means omega L is equal to 1 by omega C. Okay, so omega square will be 1 by LC, then omega will be 1 by root LC, or 2 pi f equal to 1 by root LC. You can write f as 1 by LC into 2 pi. So this is the condition of resonance. और ये जो f है, ये जो f है, it's called resonant frequency. At this frequency, your circuit is oscillating or resonating, and your XL equal to XC. It is very well like the resistor is not available. Sorry, the inductor and the capacitor and the inductor are gayab. It is not there only. It is like that. It behaves as if there is only one resistor. Okay, impedance of the circuit will only depend on the resistance, but the frequency of the circuit or the resonant frequency will depend only on L value and the C value. There are two things. One is the impedance of the circuit will depend on R, but the resonant frequency, this is series resonant frequency, will depend on L and C. It will not depend on R. R का कुछ भी वैल्यू लोगे, it will not depend. It will just wipe out. It will. But why? Then what is the purpose of R then? What is the purpose of R? Why do we require R? You remember we had a formula V naught equal to I naught into Z. You remember? Yes sir. Here, then what will be your I naught? Your I naught will be V naught by Z or V naught by R. Yes or no? So your R will decide how much current to flow. So if somebody says if there is no requirement of R, then we can remove R. No, your R will decide how much current to flow in the circuit. If your R is more, then the I naught will become also less, and if your R is less, current flowing in the circuit will become more. So the purpose of R is to decide how much current to flow. Clear? Yes sir. Okay, fine. So now what we saw, XL equal to XC, Z equal to R. So this I naught in your book, all Maharashtra book, it will be E naught by Z or E naught by R. Yes or no, Arya? Nothing. V naught equal to E naught equal to E naught, yes sir. equal to V peak are all same. Okay, or E RMS equal to V RMS is all same. So don't get confused. If at all you write your any exams, somebody will ask you V naught. V naught is nothing but voltage, AC voltage, peak voltage. Why E? Because E, other name of the voltage we also write electromotive force. That's why they write E naught. Clear, both of you?
Yes, sir. Okay. Then what is the phase difference? What happened to the phase difference? Your phase difference formula was tan phi was XL minus XC by R. Yes or no? You know XL equal to XC. Then what will happen? XL minus Zero, XC sir. will Zero. be 0. So phi will be 0. Yes or no? Why? Because sine 0 by cos 0. Sine 0 is 0, cos 0 is 1. So 0 by 1 is 0. So there is no phase difference. That means for a LCR circuit, write down LCR circuit when your XL is equal to XC, there is no difference. There is no phase difference between current and voltage. So current and the voltage will go simultaneously. Okay? Yes? Yes, sir. And this is as good as which diagram? Purely resistive. Yes or no? This one we saw in Yes, purely sir. resistive. So in LCR circuit, when XL equal to XC, it will behave as a purely resistive circuit. It will not behave anything else. It will behave as if there is no capacitor and no inductor. Clear? Yes, sir. Okay. So now we will draw a diagram. We will draw a graph. So what we got? We got F resonant frequency is equal to 1 by 2 pi LC. Or you can write omega is equal to 1 by LC, whichever formula. Omega is angular frequency, this is normal frequency. So if you draw a diagram between Z, I told you, if Z is more, frequency will become less. This is F naught and here it is Z minimum. Why it is like this? See, if you don't have minimum frequency, or if you have zero frequency, zero Z, what will happen? Your Z is 0. What will happen? You tell me. There will be no current. No current will be infinity, right? Yes, sir. I naught equal to V naught by Z. If then infinity means what will happen? Circuit will burn out. It will burn out. It will not even function. So you should have minimum. You should have minimum Z. Then only you will get F naught. Okay. Or if you turn, if you draw the diagram between I naught and F, it will be like this. That means at F naught means what? Your Z is minimum. Your Z equal to R. That means when the Z equal to R, that time maximum current flows. Maximum current. So this point, when the resonant frequency is obtained, that time you have maximum current. Otherwise, anywhere else, other values of Z, whenever XL is greater than XC or XC is greater than XL, current is less. So maximum current flows only when the XL is equal to XC or at the resonant frequency. And if you draw the diagram between Z and F, it is just ulta. That's it. Because you know that if I naught and Z are inversely proportional, yes or no? If I naught is more, Z will be less. So that's why the graph is inverse. That's it. Clear? कोई doubt है? No, sir. Okay. So now the next, did you note down? Yes, sir. Yes. Okay. So next is what? Next is we'll see now you will be confused. What is this? This graph is between F. So see, you know that resonance is constant. So you have constant.
it is unaffected. Even if you increase frequency, decrease frequency, your resistance will become same. Okay, so this is the combination of the resistance, and this one is the, what is this? This is XC. You know XC is equal to 1 by omega C. Yes or no? Or XC is equal to 2 pi FC. That means your XC and F are inversely proportional. That is why the graph is like this. Okay. Next is XL is equal to omega L. That means XL and omega are directly proportional, or XL 2 pi F. So XL and F also are directly proportional. If XL is more, F will be more. So it is this diagram. So this graph is the combination of this graph, this graph and this graph. Wherever your XL and XC meets, that is the F naught. You will say, sir, what about R? R is not at all coming into the picture. R is not at all coming into the picture. R is always constant. Whatever may happen, you change F, whatever you do, R will never change. R is always constant. So what will matter? XL and XC will differ. Clear? Any doubts? Siddhi? No, sir, understood. Advait? अद्वैत अद्वैत बोल नहीं रहा है. ओके, ठीक है. सिद्धि समझ में आया ना? हाँ सर, बट इतना क्लियर नहीं है। कुछ नहीं है, मुझे बताओ. ये देखो, 1 मिनट, कुछ है नहीं इस ग्राफ में. मुझे बता फॉर्मूला वाइज क्या है. एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल. यस और नो? एक्सएल ओमेगा, पार्टी करो नहीं, 2 पाई एफ एल. ठीक है. सॉरी, These formulas are already given. yeah, this formula we already learned. Okay. So just see, XL equal to omega L. This is called, what is this called? आर्यन, इसको क्या बोलते हैं? XL को क्या बोलते हैं? एक्सेल को सर अपना क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टेंस सर, और इंडक्टेंस इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटी. हाँ, और Z को बोलते हैं इम्पीडेंस. तो आपको पता है XL इक्वल टू ओमेगा L. तो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई F. तो देखो XL एंड योर F आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यस और नो? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब आपका ग्राफ ऐसे होता है. ठीक है. तो ये हो गया आपका XL का, XL वर्सेस F. दूसरा हमारा क्या है? XC. XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C और XC इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई FC. तो यहाँ पर देखो XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. कभी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उसका ग्राफ ये है. तो दोनों को मर्ज कर दो, ये हो गया. तो जहां पर पॉइंट आया वो आपका F नॉट हो गया. अब R का कोई सवाल नहीं है क्योंकि R अपने रास्ते है. जब फ्रीक्वेंसी का बात आता है, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, R इज नॉट एट ऑल कमिंग टू पिक्चर. R ऐसे ही अपने मन से चल रहा है. ओनली द इंटरसेक्शन ऑफ द XL एंड XC इज द F नॉट. वही है ना, XL इक्वल टू XC होगा ना. मतलब क्या है? यार XL इक्वल टू XC मतलब दिस पॉइंट में XL इक्वल टू XC. यहां पर क्या होगा? यहां पर देखो XL है, यहाँ XC है, मतलब XL इज ग्रेटर देन XL. यहां पर XL इज ग्रेटर देन XC. Yes or no? Clear? Yes, sir. Okay. So the maximum current flows when Z equal to R. जब Z इक्वल टू R है तभी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा. अब बोलोगे सर R अगर कम कर देंगे, अगर हम R कम कर देंगे तो उसका वैल्यू ऐसा हो जाएगा. सॉरी, R को ज्यादा करेंगे ना. सॉरी, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. जब R1 है, R1 इज ग्रेटर देन R2. सॉरी, पहले R1 को हम लोग ग्रेटर कर, एक मिनट,
R1 को हम लोग 10 ohms लेते हैं. जब R1 10 है, हमको I0 मिलता है, ज़्यादा करंट मिलता है. R1 को हम लोग बढ़ा देंगे तो हम लोग R2 को कर देंगे 12 ohms. तो R2 बढ़ गया. जब रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो करंट कम हो जाएगा. फिर से बढ़ा दिया, R3 कर दिया, R3 लेट से 30 ohms कर देते. तो यहाँ पर R3 बढ़ गया, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, सो करंट शुड डिक्रीज. ये आपका I1 है, ये आपका I2 है. तो R1 is lesser than R2 is lesser than R3. पट्टी करो ना. Your I1 will be greater than I2 will be greater than I3. आपका फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी सेम रह रहा है. तो क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है. जब R1 कम है, I1 ज़्यादा है, R2 बढ़ गया, I छोटा हो गया, R3 सबसे बड़ा हो गया, I3 सबसे छोटा हो गया. क्लियर? क्लियर? Yes. Yes, sir. Okay. So note down some points. Note. First point. Resonant frequency. Resonant frequency F0 equal to 1 by 2 pi LC can be changed by changing the value of L and C. R plays no role in determining the F0 of the circuit. It is only used to limit maximum current at resonance. लिखा? एक मिनट सर, एक मिनट. हो गया. Next, at resonance, at F0 or resonance, Z or impedance is minimum or Z equal to R and I is maximum. Circuit, a LCR circuit behaves as a purely resistive circuit. Okay? Okay. Yes, sir. Okay. Now, पावर फैक्टर है ना तुम्हारा? पावर फैक्टर हाँ है सर. ओके. सो पावर फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा नहीं एक्चुअली, पता नहीं कैसे मिस हुआ. तो पावर फैक्टर पढ़ते हैं अभी थोड़ा. वेट, रुक जाओ थोड़ा. ओके, हम लोगों ने ये टॉपिक मिस किया था, बट
डोंट वरी, वी विल स्टडी इट. थोड़ा वेट करो, 2 मिनट. हम लोगों ने पढ़ा था पावर. मुझे बताओ पावर ऑफ ए डीसी सोर्स क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा पावर का? V इंटू आई, यस और नो? हाँ सर. वोल्टेज इंटू करंट. बट ये किसका है? जिसका डीसी का आपको पता है वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो ये एप्लीकेबल है. और वी कैन राइट दिस एज आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर, विच एवर फॉर्मूला यू कैन यूज. देयर आर 3 फॉर्मूलाज. ओम्स लॉ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है. बट दिस इज नॉट सो सिंपल फॉर ए AC voltage, AC source. It is very simple for a DC voltage, DC source. V into I हो गया. अब आप क्या करोगे? क्या ये पता है ना ये कैसे फॉर्मूला आया, आई स्क्वायर कैसे आया, पता है ना? ये नहीं पता है? अद्वैत कैसे आया? आर्यन कैसे आया? हाँ सर. V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई. ये आई स्क्वायर आर कैसे है, पता है? V पावर इक्वल टू V इंटू आई. तो V को हम लोग V इक्वल टू आई आर, तो आई आर सब्स्टिट्यूट करो इंटू आई करो. आई को B बाई आर करो तो V स्क्वायर बाई आर बन गया. तो दिस इज वेरी सिंपल फॉर डीसी वोल्टेज, but not so simple for AC voltage or AC source. So we will learn about power factor. ठीक है? ओके. तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम कैसे लिखते हैं पावर को? पावर को हम लोग लिखते हैं V इंटू आई, ऐसे लिखते हैं. क्यों? क्योंकि V जो है ये AC वोल्टेज है और ये चेंज होता है, एंड I ऑल्सो चेंज होता है. आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा था V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये किसके लिए है? ये प्योरली रेजिस्टिव के लिए है कि नहीं? क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव में योर फाई इज 0, बट इंडक्टर और कैपेसिटर में अलग है. कहीं पर फाई ग्रेड वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय 90 डिग्री एंड समवेयर I is leading voltage by 90 degree. ठीक है? So we will see. So now let us take for example. So कैसा रहता है? Basically ऐसा रहता है. For L and C, your V equal to V naught sin omega t, and I will be I naught sin omega t plus phi. It will depend. अगर I lead करता है तो ये 90 इधर होगा, अगर I लैग करता है तो यहाँ -90 होगा. क्लियर? यस अद्वैत, आर्यन? हाँ सर. ओके. तो अभी हम लोगों ने हम लोग V इसको लेंगे और I इसको लेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है? ओके ना, चलेगा ना? हाँ. ओके. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो तो V के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? V नॉट साइन ओमेगा टी, और I के जगह पे क्या करेंगे? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. यस, करेक्ट है. तो V नॉट I नॉट कॉन्स्टेंट है, निकल आएगा. तो बाकी बचा क्या? साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. करेक्ट है? हाँ. ओके. अभी हम लोग क्या करें? दिस इज कॉल्ड इंस्टंटेनियस वोल्टेज. इंस्टंटेनियस वोल्टेज.
वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज पावर। एवरेज पावर मतलब इंस्टेंट, मतलब देखो पावर हर टाइम चेंज होता है क्योंकि आपका वोल्टेज और करंट चेंज होता है हर सेकंड, हर मोमेंट पे। हम लोग इसका कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी नीड एवरेज पावर। एवरेज पावर इज द वन विच वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन। तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? हम लोगों ने, मैंने बताया था कि पी एवरेज इज इक्वल टू, यस और नो, या यस पढ़ा था कि सर। नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो ये जो है ये इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस। तो अभी क्या करेंगे? अभी पूरा हम इसका पूरा बार करेंगे, इसका पूरा बार करेंगे। साइन ओमेगा टी और यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इसका पूरा बार आएगा क्योंकि ये पूरा बार है, इसका बार है। तो पी एवरेज क्या है? पी इंस्टेंटेनियस का ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, बार है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करोगे? क्या करोगे बताओ? देखो ये है साइन ए, ये साइन ए प्लस बी है कि नहीं? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? क्या है साइन ए प्लस बी फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट? यस तो सर। यहाँ पर ए क्या है? ए है ओमेगा टी, बी है 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है ना? तो यहां पर ये आ जाएगा, यहां आ गया साइन ओमेगा टी, और यहां पर क्या आ जाएगा? इसको हम लोग डाल देते हैं, किसको? इसको कॉपी करके डाल देते हैं, ये चीज इधर आएगा। क्लियर? ठीक है ना? कोई डाउट है? इसका पूरा बार आएगा इधर। तो इसको मल्टीप्लाई, साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं समझा। सीधी सीधी समझ में आया? हाँ सर, समझा। हाँ सर। कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं। साइन ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ए प्लस बी, इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है ना? और कुछ नहीं हुआ, सेम है। नोट डाउन करो, नोट डाउन करते रहो मेरे साथ। हाँ सर। ओके? तो अभी क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे इसको, सेपरेटली हम लोग लेंगे। ये सुनो, ये सर नो, सेपरेट कर देते हैं। तो वी नॉट आई नॉट तो कॉमन है, तो इसको कॉमन रख लो। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, ओके, प्लस, अब मुझे बताओ, आपको पता है एक फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ सर। पता है? तो क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? अभी ये हो गया साइन ओमेगा टी कॉस 5, सॉरी साइन ओमेगा टी कॉस, तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखो, अगर साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, एक मिनट, मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग, एक मिनट, अगर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं साइन 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर साइन थीटा के जगह साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ तो इसको मैं क्या किया, इसको हटा के ये जो पार्ट है,
ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको मैं क्या लिखा, साइन 2 ओमेगा 2t बाय 2 इंटू कॉस फाई। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं समझा। ओके, तो अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, सेपरेट कर दो। तो वी नॉट आई नॉट का हो गया, ठीक है, इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई का हो गया, प्लस साइन 2 ओमेगा टी कॉस फाई का हो गया। अलग अलग कर दो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, याद रखो, साइन ओमेगा टी ओके, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी, सबका एवरेज क्या है, 0। तो ये हो गया 0, हाँ ठीक है। दूसरा फॉर्मूला याद रखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका होता है हाफ, समझा। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो ये वी हाँ, नॉट, और वी नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो कॉस फाइव भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉस फाइव भी रहेगा। तो इसका हो गया हाफ, इसका हो गया कॉस फाइव, और ये हो गया हाँ, 0। तो अपना वैल्यू क्या निकला, वी नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाइव। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज। ओके सर। तो आप बोलोगे फाई क्या है, जहां फाई हमने हर जगह पर फाई निकाला, ये सब है कि नहीं, फाई हर जगह निकाला कि नहीं। एक्सेल हमने एलआर सर्किट में क्या निकाला, क्या निकाला था, एक्सेल बाई आर, फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सेल बाई आर। और आरसी सर्किट में क्या निकाला था, एक्सी बाई आर। तो जो फाई है उसका कॉस फाई है। समझते हैं? इतना तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है? सिद्धि कोई डाउट है? सर साइन पर ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ, वो भी एक मैंडेटरी फॉर्मूला है। हैव टू रिमेंबर, यस, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज अगर नहीं लोगे तो उसका वैल्यू हाफ है। ओके सर। और साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2, साइन 3 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, कुछ भी उसका होता है तो उसका 0 आएगा। ओके सर। रब कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू हाफ इंटू कॉस फाइव। करेक्ट? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, वी नॉट इंटू √2 इंटू आई नॉट बाय √2 इंटू कॉस फाइव लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 2 को मैं स्प्लिट करके √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। हाँ सर चलेगा। हाँ तो वी नॉट बाई √2 को क्या बोलते हैं, वी आर एम एस। और आई नॉट बाई √2 को क्या, आई आर एम एस। तो इसको वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये और एक फॉर्मूला है। And this cos phi is what? R by Z, R by Z, और इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ओके। जिसका R ज्यादा रहेगा पावर फैक्टर ज्यादा रहेगा। मतलब इफ द सर्किट हैविंग R is greater than Z, मतलब R is greater than XC and XL, तो उसका पावर फैक्टर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि R क्या करता है, पावर खाता है, और लीट ऑफ पावर, जिसका R ज्यादा है वो ज्यादा खाता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे जाएंगे। क्लियर? लिखा सबने? हाँ सर। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे अलग अलग सर्किट का, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो पहले लिखो यहाँ पर सर्किट, यहाँ पर लिखो फाई, यहाँ पर लिखो कॉस फाई, और यहाँ पर तीनों लाइन डालो। पहला सर्किट हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टर, प्योरली इंडक्टर।
सॉरी रेजिस्टर, तो रेजिस्टर का फाई क्या है 0 है, तो कॉस फाई क्या है 1 है। अरे फाई 0 है तो कॉस फाई क्या 1 ही होगा ना। यहां पर क्या था मैंने बताया था कि वोल्टेज और करंट गोस टुगेदर, ये प्योरली रेजिस्टर का है, साथ साथ में हाँ। है। सेकंड क्या है प्योरली इंडक्टर, इसमें क्या था वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री, तो फाई क्या है हाँ। 90, तो कॉस 90 0। थर्ड प्योरली कैपेसिटर, लैग। तो इसमें क्या है वोल्टेज इधर आएगा करंट इधर आएगा, सेम मतलब ये तो 90 ही है ना, ये फिर से 0 आया, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में कॉस फाई 0 ही है, ठीक है ना। कॉस फाई 0 है तो पावर 0 है, वो पावर खाता नहीं है। इंडक्टर और कैपेसिटर पावर नहीं खाता कौन है रेजिस्टर खाता है, रजिस्टर खाता है, हाँ सर। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एलआर सर्किट में। एलआर सर्किट में रेजिस्टर आया और एक इंडक्टर आया, ये एलआर हाँ। सर्किट है। तो यहाँ पर क्या था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आर आता है, यहाँ पर एक्सएल आता है, यहाँ पर जेड आता है और यहाँ पर फाई आता है। तो इधर फाई क्या है आर बाई जेड विच इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एक्सएल स्क्वायर XL प्लस आर। आर स्क्वायर। फिफ्थ क्या है आरसी सर्किट, तो रेजिस्टर आएगा और एक कैपेसिटर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा नीचे आ जाएगा, इधर हाँ, आर उल्टा, आएगा, हाँ। इधर एक्सी आएगा, इधर जेड आएगा, ये वाला फाई है, ये वाला फाई है और यहाँ पर फिर से फाई, यहाँ पर फिर से आर बाई जेड और इधर जेड अलग है, क्या है एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, लास्ट वाला है एलसीआर सर्किट। इधर कैसा है, इधर आर है, इधर एक्सएल है और इधर एक्सी है ना, ऐसा है। इट विल डिपेंड, एक्सएल बड़ा है, इधर फिर से फाई आया तो इधर आर बाई जेड है, इधर जेड क्या है एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ Clear? सर। टाप दो इसको। इधर अलग अलग आएगा, आपको पता है, या एक्सएल एक्सी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना, आपको पता ही है। और 0 जब हो जाएगा तब 0 हो जाएगा, आपको पता है दिस विल बिहेव एज दिस सर्किट, वो आपको पता ही है, मैं आपको बोलने नहीं वाला। हाँ हाँ At XL equal to XC, it will behave like this one, this circuit. Otherwise, it will behave like this. यस सर। Okay? सिद्धि यस सर। लिख दिया? हाँ सर। इजी है ना, इसमें क्या दिक्कत है क्या, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, बट मुझे फिलहाल आरसी ये सब अरे सर्किट वो पढ़ना है, हाँ, बट ये समझ में आ रहा है ना क्या हाँ हम बट ये लोग, समझ में आ रहा है। हाँ, ओके, सो हो गया, शैल आई गो अहेड? यस सर। नेक्स्ट विल गो टू चोक कॉइल। अब पता है चोक कॉइल क्या है? आपको याद है पहले व्हेन यूज्ड टू हैव ट्यूबलाइट्स, मोटा ट्यूबलाइट होते थे, हाँ दैट यूज्ड टू हैव वन दिस थिंग, देयर यूज्ड टू बी ए चोक, एक बड़ा वाला कुछ आता था स्टील का, हाँ सर, मालूम है सर, मालूम है। यहाँ पर एक स्टार्टर आता था, तो ये क्या है, ये चोक बोलते हैं इसको, चोक। तो चोक का काम क्या है, वोल्टेज रिड्यूस करना,
वोल्टेज रिड्यूस करना, ठीक है, ताकि मैक्सिमम करंट मिल सके, वोल्टेज रिड्यूस करना। तो चोक कॉइल इज प्रीवियसली इट इज यूज्ड टू बी यूज्ड, ठीक है ना, बिकॉज सम डिवाइसेस कैन नॉट वर्क एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज देखो 220 वोल्ट पे काम नहीं करेगा, तो वो क्या करते हैं हम लोग मैनुअली क्या करते हैं, चोक करते हैं ताकि ये खाए, और लेकिन करंट वेस्ट ना हो, करंट वेस्ट ना हो, करंट मिले, वोल्टेज मिले, बट ये जो वोल्टेज खाने के लिए हम यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ। अब तुम बोलोगे सर रेजिस्टर भी तो खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, बट रेजिस्टर क्या करता है, वेस्ट करता है पावर। रेजिस्टर भी हम लोग रेजिस्टर भी डाल सकते हैं, बट क्या प्रॉब्लम क्या होगा कि रेजिस्टर विल ईट अप पावर, इट विल बी वेस्टेज। बट इंडक्टर ऐसा नहीं है, इंडक्टर क्या करता है, वेस्ट नहीं करता है। इंडक्टर का प्रॉपर्टी ऐसा है कि इंडक्टर, देखा हमने बताया ना, पावर इक्वल टू इंडक्टर के लिए क्या था, कॉस फाई क्या था, 0 था, है कि नहीं, कॉस फाई 0 मतलब इंडक्टर पावर वेस्ट नहीं करता है, खाता नहीं है, बट इंडक्टर क्या करता है, खा जाता है। कॉस फाई उसका 1 है, तो दैट इज वाई वी डोंट यूज रजिस्टर। ओके, तो ये अपना थियरी है, स्मॉल थियरी है, तो लिख दो, पॉइंट लिख दो। फर्स्ट पॉइंट, एट मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया our household voltage is 220 volts. At most places in India, our household voltage is 220 volts and 50 hertz. But अमेरिका में 11 वोल्ट है, अलग है, ठीक है ना। तो इसीलिए any electronic object you buy from America need not necessarily work in India, क्योंकि उसका सर्किट डिजाइन ऐसे हो गया है कि it will only work in India. Okay, so you are only supposed to make in India. That is why phones which are released in India, America or China will not work here. So they specifically make phones for India. That's why made in India or make in India. क्यों ना, they are designed for Indian customers or Indian environment. Second point, some devices like tube lights cannot work in such high voltage. Some voltage is a very high volt, it cannot work. So what we should do, that is why to reduce voltage, अभी तुम थोड़ी ना जाके ट्रांसफार्मर में कम कर दोगे, नहीं, तो जो आता है उससे रिड्यूस करना। तो रिड्यूस वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज टू ट्यूबलाइट, वी यूज चोक कॉइल। चोक कॉइल का काम क्या है कि जो वोल्टेज आ रहा है हाई वोल्टेज, उसको कम देना, कम वोल्टेज देना, ताकि वो काम करे। हाई वोल्टेज में काम नहीं करेगा। पुराने ज़माने का जो है उसको अगर डाल दोगे तो जल जाएगा। आज nowadays we don't see tube lights, we are only having CFL bulbs, yes or no, or LED bulbs. Very few offices are having tube lights. Tube lights are very old ones. Okay, so but why do we then, we can also reduce the voltage by using a resistor. But why do we not use resistor? Because resistor, okay, will waste voltage. Okay, it will reduce. अगर हम लोग एक, मान लो एक बल्ब है, यहाँ पर एक रजिस्टर डाल दिए, मान लो यहाँ पर एक 10 वोल्ट का सोर्स है, तो यहाँ पर मान लो हमने एक 10 ohms डाल दिया, तो ये 9 वोल्ट खा जाएगा, इसको 1 वोल्ट देगा, बट ये दिस विल वेस्ट पावर। वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो। सो बिकॉज योर कॉस फाई, रेजिस्टिव सर्किट के लिए कॉस फाई क्या है, 1 है, तो इसका मैक्सिमम पावर खाता है। सो दैट इज वाई वी यूज ए चोक कॉइल। तो व्हाट इज ए चोक कॉइल? चोक कॉइल इज बेसिकली ए इंडक्टर, बेसिकली इंडक्टर, और कुछ नहीं। अंदर जो रहता है वो ऐसे ही रहता है, अगर तोड़ दोगे तुम देखोगे उसमें खाली ऐसे टर्न्स रहेगा। 17-15। ओके, क्लियर? ओके, सो वी नीड ए, तो क्या है, द चोक कॉइल इज बेसिकली, चोक कॉइल, अब तुम बताओगे, चोक कॉइल इज बेसिकली सीरीज एलसीआर सर्किट। It's basically not a LCR circuit but LR circuit. Okay. बट आपको पता है हर इंडक्टर का
एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो एलसीआर सर्किट बन जाता है। कोई भी ऐसा इंडक्टर नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, हर एक वायर का भी छोटा रेजिस्टेंस रहता है, इसीलिए एलआर सर्किट बन जाता है एलसीआर सर्किट। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. The function of choke coil is to reduce voltage by not wasting power or not wasting too much of power. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? Your Z should be large. देखो, अगर मैं बोलूंगा cos phi, अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? P average इक्वल टू V नॉट इंटू I नॉट इंटू cos phi. Yes or no? अभी cos phi को मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है। कैसे मिनिमम करेंगे? अगर phi मिनिमम हुआ, phi कब मिनिमम होगा? phi कब मिनिमम होगा? phi मिनिमम करेंगे, phi मैक्सिमम करेंगे? बताओ। cos phi कितना है? cos phi है r by z। यस और नो? R by Z. r by z। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करेंगे? phi को क्या करेंगे? बताओ बताओ बताओ। Z को बड़ा करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? अरे बाबा, हमको ना फाई को Cost कम होगा सर। 90 लेना है। 90 कब कर सकते हैं? फाई को बढ़ाना है। फाई को कब बढ़ाएंगे? जब ये आपका बढ़ेगा, ये जीरो होगा, Z कम होगा। हाँ। ये जीरो होगा। और ये कब जीरो कम, ये जीरो होगा कब छोटा होगा? जब तुम्हारा z बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, हाँ, सर। न्यूमिनेटर छोटा होगा, मतलब z शुड बी ग्रेटर देन r। यस और नो? यस और नो? बट z आपको पता है ये एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है कि नहीं? हम r को नहीं बढ़ा सकते, तो किसका बढ़ाएंगे? एक्सएल को बढ़ाएंगे। r बढ़ेगा तो वो खा जाएगा पावर, एक्सएल को बढ़ाएंगे। एक्सएल को बढ़ा देंगे तो z ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। r को हम लोग सेम रखेंगे। जब r को सेम रखेंगे, z को बहुत बड़ा करेंगे, तो r बाई, अब मुझे बताओ, 1/1000000, ये वैल्यू जो है जीरो से बहुत नजदीक है कि नहीं? ये बहुत छोटा है। हाँ। जब ये बहुत छोटा होगा, मतलब जीरो से बहुत नजदीक होगा, तो ये जो फाई है, ये फाई जो है, ये 90 से बहुत नजदीक होगा। हाँ सर, बराबर। क्योंकि हमको पता है cos 90 जीरो हो जाएगा। Cos 90, हाँ। बट हमको हम फाई को देखो 90 कभी कर नहीं सकते, तुमको पता है, कभी नहीं कर सकते। बट हम लोग क्लोज टू 90 तो कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है ना? जब क्लोज टू 90 करेंगे तो फाई विल बी वेरी वेरी नियर टू 90 एंड दिस क्वांटिटी विल बिकम, दिस होल क्वांटिटी विल बिकम वेरी वेरी लेस देन 1, नॉट 1, 0, 0 से थोड़ा कम होगा। जीरो नहीं हो सकता ना, नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, जीरो सर। प्योरली इंडक्टर, प्योरली कैपेसिटर में हो सकता है, लेकिन ये प्योरली नहीं है। यहाँ पर तो एलसीआर सर्किट है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एक्सेल को बड़ा करते हैं। एक्सेल को बड़ा, ये देखो, ये एलआर सर्किट है बाय द वे, एलसीआर नहीं है, एलआर सर्किट है। देखो एलआर सर्किट क्यों है, इसको भूल गया, आई एम सॉरी। ये इंडक्टर है और आपको पता है कि हर एक इंडक्टर का एक इंटरनल रजिस्टर रहता है, तो इसीलिए वो एलआर सर्किट बन गया, नॉट एलसीआर सर्किट है। आई एम सॉरी, एलआर सर्किट है। तो एलआर सर्किट में हम अपना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, हम लोग रेजिस्टेंस को कुछ नहीं कर सकते, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो किसको बढ़ा सकते हैं? एक्सेल को बढ़ा सकते हैं, टर्न ज्यादा कर सकते हैं। तो टर्न ज्यादा कर दिए तो z बड़ा हो जाएगा। जब z बड़ा हो जाएगा तो ये पूरा जो वैल्यू है ये बहुत छोटा हो जाएगा। जब बहुत छोटा हो जाएगा, इसका मतलब इट विल बिकम क्लोज टू जीरो। when it become close to zero, when cos phi is tending to 0, your phi will be tending to 90. Yes or no? And your average power will become close to 0. मतलब वो कम पावर खाएगा, hence very little power is wasted. समझ गए आर्यन? Yes sir. सिद्धि? यस सर। कोई पूछेगा तो क्यों रजिस्टर नहीं यूज करते?
ना रेजिस्टर क्या करता है, पावर खा जाता है, इट आ वेस्ट जाता है, हाँ सर, वेस्टेज हो जाएगा सर। इंडक्टर नहीं कर रहा, देखा आपने, इंडक्टर नहीं कर रहा है, इंडक्टर बहुत कम पावर यूज कर रहा है, उसका पावर एवरेज क्या है, 0 से बहुत नजदीक है, कभी भी नजदीक है। नहीं हो सकता, नजदीक है, मतलब बहुत कम पावर खा रहा है, और यही चोक का काम है, चोक का काम है, ठीक है, यस सर। फाइन। सो लेट अस कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे, ओके ओके सर। ओके, चलो वैसे bye। सर ये चैप्टर तो सर हो गया, हम लोग का इतना ही है चैप्टर में तो। इतना ही है क्या? नहीं नहीं, वो है ना, हाँ सर। रेजोनेंस मैंने नहीं किया ना अभी, एलसी रेजोनेंस कहाँ खत्म अच्छा है? अच्छा, हाँ वो बाकी है एक पार्ट, हाँ और बराबर, एक एलसी रेजोनेंस बाकी है। और एक चैप्टर है, और एक जाएगा, और एक क्लास, हाँ ठीक है सर, चलेगा, ओके। ठीक है, ओके बाय थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय।